हेलो, हाउ आर यू? आज इंग्लिश की 23rd क्लास है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारी क्लासेस वगैरह देखी होंगी, वीडियोस रेगुलर देख रहे होंगे, और अगर नहीं देखे तो आप उनको प्लीज़ पीछे के वीडियोस देख लीजिए। आज हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे न्यूज़पेपर रीड करके। यू नो, देर आर 4 skills required to learn English: writing, reading, listening and speaking. So we should follow all the techniques to learn English. हम कई टेक्निक्स सीख चुके हैं, जैसे चैट जीपीटी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे इंग्लिश सीखते हैं वो हम कर चुके हैं। मोबाइल से डियोलिंगो से आप देख चुके हैं कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश की। और मूवीज़ से, मूवीज़ के जो सब टाइटल्स हैं उनको पढ़ के आप इंग्लिश सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर रीड करते हुए आप कैसे इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं और सीख सकते हैं। न्यूज़पेपर, आप पेपर न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। आजकल अगर आपके घर में पेपर न्यूज़पेपर नहीं आता तो आप मोबाइल पे भी एप्लीकेशंस हैं अलग अलग न्यूज़पेपर की, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और अलग अलग पेपर्स की। इवन न्यूज़ चैनल के भी अपनी वेबसाइट्स हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस। आप व्हाट्सएप चैनल में भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर के अपने अपने व्हाट्सएप चैनल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रोफेसर अशोक अरोड़ा का भी व्हाट्सएप चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं एक न्यूज़ से। लेट्स स्टार्ट विद ए न्यूज़। फर्स्ट लिसन टू द न्यूज़। आप न्यूज़ को पूरा सुनिए। इंग्लिश अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे, तो डोंट वरी, हम उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है ये न्यूज़, और उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आप इसको पहले सुनिए, लिसन द न्यूज़, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन इट, वी विल डू द ट्रांसलेशन। Delhi. Young filmmaker bleeds on road after crash, robbed even as help comes late. New Delhi. A 30-year-old filmmaker lay bleeding on a busy road in South Delhi for about half an hour, after being involved in a collision with another bike, with passers-by and bystanders recording videos and selfies even as his life ebbed away. Piyush Pal, who had suffered severe head and facial injuries, didn't get a fighting chance because of the disturbingly familiar lack of empathy of Delhiites in such situations. What's worse, Pal's laptop and mobile were stolen. The accident happened on Outer Ring Road, in the carriageway that goes from IIT Crossing to Nehru Place, around 9:45 pm on Saturday, going by the timestamp on the CCTV footage secured from a petrol pump at Panchsheel Enclave. There's a steady stream of vehicles here through the day. However, it was only 30 minutes later when Pankaj Jan and a few others stopped to check what the commotion was all about that things began moving. Jan told Toy, he had lost a lot of blood and people who were standing there told me he had been there for around half an hour. I asked 2 or 3 other people for help to lift him. Bystanders were busy recording videos after crash, no one was helping victim. They put him in an auto rickshaw and took him to a clinic nearby, which was not equipped to handle the case. They then rushed him to PSRI Multi-Speciality Hospital on Press Enclave Marg, about 4 kilometers away, through the heavy traffic. It was around 11 pm when Pal finally got medical help, but the delay may have proved costly. Police said a PCR call about the accident was received at 10:11 pm. The caller said 2 people were injured. Our men reached the spot by 10:30 pm but both persons were found to have been shifted to different hospitals, said Chandan Chowdhury, DCP, South. No eyewitnesses were found at the spot. One of the injured had been shifted to PSRI hospital and another to AIIMS Trauma Center.
Chowdhury said the CCTV footage shows Pal hitting another bike being driven by a man identified as Bunty, 26. Pal's friends dispute this version. Pal worked as a freelance photographer at Gurugram while Bunty is a driver, also based in Gurugram. On the basis of Bunty's statement and analysis of CCTV footage, a case of accident was registered on Monday. On Tuesday evening, we received the news of Pal's death, added Chowdhury. What has left Pal's friends like Swarnendu Bose aghast is the callousness of people in the city. The worst part is that for a long time, no one stepped forward to take him to the hospital or help him. The people who finally took him to the hospital told us that bystanders were recording videos and taking selfies, but no one was helping him, said Bose. His mobile phone and laptop were taken away. His parents were trying to reach him on his phone, but the person who took it kept cutting the calls and later switched off the phone. Had someone taken those calls and told the family, things could have been different, said Bose. Pal was just a few kilometers away from his home in Kalkaji when tragedy struck. His family runs a shop that sells puja items in Chitranjan Park. Good Samaritan Jan lamented that people don't step forward to help. Accidents can happen to anyone, anytime. I am grateful to the auto driver who drove as fast as he could, Jan told Toy, regretting that Pal could not be saved. Bose said Pal had bought a new Hero X Pulse bike and was probably returning from a fitness center in RK Puram when the accident happened. The head of neuro intervention and senior consultant, neurosurgery, at PSRI Hospital, Dr. Sumit Goyal, said the patient was brought to the hospital around 11 p.m. He was in a very critical condition with severe head and facial injuries. He was immediately put on ventilator support and medicines were started to stabilize his falling blood pressure. However, with such severe injuries, despite all efforts, he passed away. Pal was pronounced dead around 5:13 p.m. on Tuesday. An autopsy was conducted and his body handed over to his relatives on Wednesday for the last rites. The cremation took place late evening at Nigambodh Ghat. Have you understood the news? Let's do the translation. अब हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं. Delhi young filmmaker bleeds on the road after crash dropped even as help comes late. Young filmmaker bleeds on road, मतलब उसको रोड के ऊपर उसका ब्लड निकल गया उसकी आफ्टर क्रैश, जिस एक दुर्घटना के समय. रॉब्ड इवन एज हेल्प कम्स लेट, और रॉब्ड भी हो गया यानी कि उसको लूट भी लिया गया क्योंकि जो मदद है वो देरी से आई. तो ये टाइटल है टाइम्स ऑफ इंडिया 2 नवंबर की ये खबर है. तो उनके कर्टसी से ही हम दे रहे हैं ये आपको. तो आप इसको समझिए, देखिए. न्यू दिल्ली, ए 30-year-old filmmaker lay bleeding on a busy road in South Delhi for about half an hour. 30 साल का एक फिल्म मेकर ले ब्लीडिंग मतलब वो खून से पड़ा हुआ था ऑन ए बिजी रोड, एक व्यस्त रोड पे, इन साउथ दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में, फॉर अबाउट हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे से वो खून से लथपथ पड़ा था. आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन ए कोलिजन विद अनदर बाइक. आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं. अभी हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं किए, अभी हमने सिंपल सेंटेंसेस किए हैं, लेकिन ये सब हम करेंगे. पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझेंगे. टेंसेस वगैरह हम प्रेजेंट परफेक्ट तक आपको करा चुके हैं, तो धीरे धीरे टेंसेस हम कंप्लीट करेंगे, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स में भी जाएंगे. तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मतलब कई सेंटेंस आप मिलके एक सेंटेंस बन रहे हैं, लेकिन आप इनको समझ सकते हैं. अगर रीडिंग करेंगे तो ये नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, आप समझ सकते हैं. तो ग्रामर पे अभी ज़्यादा आप ध्यान ना दीजिए, आप न्यूज़ को समझने के ऊपर ध्यान दीजिए. आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन ए कोलिजन विद एन अनदर बाइक, यानी कि दुर्घटना हुई. कोलिजन होता है टकराना, किसी और बाइक से वो टकरा गई उसकी बाइक,
तो उसके बाद ये हुआ विद पासर्स बाई होती हैं जो लोग जा रहे हैं, एंड बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं दर्शक जो तमाशबीन है, रिकॉर्डिंग वीडियोस एंड सेल्फीज इवन एज हिज लाइफ अबेडेड अवे। अबेडेड का मतलब होता है, अबेडेड अवे मतलब दूर जाना, यानी कि छिन जाना, उसकी ज़िंदगी छिन रही थी, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, वीडियोस और सेल्फीज़ बना रहे थे जो दर्शक थे या जो लोग पास कर रहे थे। तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है ये। पीयूष पाल हु हैड सफर्ड सीवियर हेड एंड फेशियल इंजरीज, पीयूष पाल उसका नाम है, हु हैड मतलब जिसको, सफर्ड जिसको जख्म हुआ, जिसको जो पीड़ित हुआ, सीवियर हेड एंड फेशियल इंजरी मतलब उसके सिर पे भी चोट लगी और उसके चेहरे पे भी इंजरीज आई, इंजरीज का मतलब जो जख्म आए। डिड नॉट गेट ए फाइटिंग चांस, उसको मौका नहीं मिला कि वो लड़ सके ज़िंदगी से, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बिंग फेमिलियर लैक ऑफ एम्पैथी ऑफ डेलाइट्स इन सच सिचुएशन। क्यों नहीं मिला? बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बिंगली फेमिलियर लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी होती है कि लोगों में बिल्कुल वो एम्पैथी रखना, कुछ उनके लिए सिंपैथी रखना, वो नहीं है लोगों में, कोई दया भावना नहीं है। ऑफ दे लाइट्स मतलब दिल्ली के रहने वालों में, इन सच सिचुएशन मतलब इस तरह की सिचुएशंस में। वर्ड्स वोर्स मतलब कितना बुरी बात है, कितना गलत वर्स है, गलत है। पाल्स लैपटॉप एंड मोबाइल वर स्टोलन मतलब वो जख्मी पड़ा हुआ था और उसके लैपटॉप और मोबाइल को भी चुरा लिया गया। आगे न्यूज़ क्या लिखती है? द एक्सीडेंट हैपेंड ऑन आउटर रिंग रोड। एक्सीडेंट जो ये दुर्घटना हुई, हैपेंड मतलब कहाँ हुआ, ये हुआ आउटर रिंग रोड पे। इन द कैरिज वे मतलब एक रास्ता है जो जाता है, दैट गोज़ फ्रॉम IIT क्रॉसिंग टू नेहरू प्लेस। IIT क्रॉसिंग से लेकर नेहरू प्लेस की तरफ जो रास्ता जा रहा है, जो रोड जा रहा है, वहाँ पे हुआ। कब हुआ? अराउंड 9:45 PM, 9:45 बजे हुआ। कब हुआ? ऑन सैटरडे, शनिवार को। गोइंग बाय द टाइम स्टैम्प ऑन द CCTV फुटेज स्क्योर्ड फ्रॉम ए पेट्रोल पंप एट पंचशील एनक्लेव। ये टाइम कैसे पता लगा? जो CCTV की फुटेज में टाइम आ रहा था, जो एक पेट्रोल पंप पे लगी हुई थी पंचशील एनक्लेव में। देयर इज़ ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ व्हीकल्स हेयर थ्रू आउट द डे। देर इज़ ए मतलब ये देयर्स का मतलब देयर वाज भी हो सकता है, लेकिन वहाँ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ व्हीकल मतलब व्हीकल जो वाहन है उनकी एक लाइन लगी रहती है पूरे दिन में। हाउएवर इट वाज ओनली 30 मिनट्स लेटर व्हेन पंकज जैन, हाउएवर का मतलब होता है उस, हालांकि इट वाज ओनली 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद, व्हेन पंकज जैन एंड ए फ्यू अदर्स, पंकज जैन और कुछ और लोग, स्टॉप टू चेक रुके देखने के लिए कि व्हाट द कमोवेशन वाज ऑल अबाउट, दैट थिंग्स बिगेन मूविंग। कमोवेशन क्या होता है? कमोवेश का मतलब वहाँ पे जो हंगामा हो रहा था। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उनको अंडरलाइन करिए, उनको मार्क करिए और उनके मीनिंग आप लिखिए, तो आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। तो अब देखिए, जैसे ये अभी तक जो न्यूज़ पढ़ी है हमने, इसमें जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं, जैसे जो भी आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे कोलिजन हो गया, बाई स्टैंडर्ड्स हो गया, अब इन एबेडेड हो गया, इनके मीनिंग आप नोट करिए। आप इनको डिस्टर्बिंगली हो गया, एम्पैथी हो गया, तो इससे आप सिचुएशन हो गया, इससे आपकी जो वोकेबलरी है मतलब वो इम्प्रूव होगी। और इनके मीनिंग आप गूगल में जा सकते हैं, गूगल में ट्रांसलेटर भी होता है, गूगल में डिक्शनरी भी होती है, आप वहाँ से गूगल में जाके आप देख सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट एक एप्लीकेशन होती है, आप गूगल ट्रांसलेट में जाइए गूगल में, तो वो वहाँ पे कुछ भी लिखिए तो आ जाएगा। तो
आपको मीनिंग बता देगा, जिसमें भी चाहिए, हिंदी में, किसी और लैंग्वेज में भी चाहिए। अगर आप इंडिया से बाहर हैं, हिंदी नहीं आती, तो आप अपनी लैंग्वेज में, जर्मन में या किसी और लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। तो जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप उसको कर लेंगे। तो आगे न्यूज़ पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? जैन टोल्ड TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया को जैन ने बताया, जैन जिसने हेल्प की थी, पंकज जैन जो वहाँ आया था, he had lost a lot of blood and people who were standing there told me he had lost a lot of blood। आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़िए, पूरा पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगा। he had lost मतलब वो काफ़ी उसका ब्लड निकल चुका था। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, had lost, ये भी हम करेंगे आगे, जब पास्ट टेंस करेंगे तो पास्ट परफेक्ट भी करेंगे। एंड पीपल हु वर स्टैंडिंग, और लोग जो खड़े हुए थे वहाँ पे, टोल्ड मी, मुझे बताया उन्होंने, टोल्ड मी मतलब मुझे बताया, ही हैड बीन देयर फॉर अराउंड हाफ एन आवर, मतलब वो आधे घंटे से वहीं पड़ा हुआ है। आई आस्क्ड 2 or 3 अदर पीपल फॉर हेल्प टू लिफ्ट हिम, मैंने 2 या 3 लोगों को उसकी मदद करने के लिए कहा कि उसको उठाते हैं। बाई स्टैंडर्स वर बिजी रिकॉर्डिंग वीडियोज़ आफ्टर क्रैश, नो वन वाज हेल्पिंग विक्टिम, जो दर्शक थे, जो तमाशबीन थे, वो वीडियोज़ बनाने में लगे हुए थे क्रैश के बाद, ये इस दुर्घटना के बाद। नो वन वाज हेल्पिंग विक्टिम, अब नो वन वाज हेल्पिंग मतलब कोई विक्टिम की मदद नहीं कर रहा था। अब ये नो वन वाज हेल्पिंग कौन सी टेंस है? ये पास्ट कॉन्टीन्यूज़ है। अभी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज़ हम कर चुके हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूज़ भी हम सीखेंगे। दे पुट हिम एन ऑटो रिक्शा एंड टुक हिम टू ए क्लिनिक नियर बाई, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। वो उन्होंने उसको ऑटो रिक्शा में डाला और टुक हिम, और उसको ले गए कहाँ पे? ए क्लिनिक नियर बाई मतलब नज़दीक में, विच वॉज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल द केस, जिस पे क्लिनिक के में वो पूरा इक्विप्ड ही नहीं था, मतलब वहाँ पे साधन ही नहीं थे, वहाँ पे ऐसा ऑपरेटर्स ही नहीं थे कि जिससे कि इस केस को हैंडल किया जा सके। दे देन रश्ड हिम टू PSRI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑन प्रेस एनक्लेव मार। दे देन वे तब रश्ड हिम मतलब तेज़ी से लेके गए, रश्ड हिम कहाँ लेके गए? PSRI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो प्रेस एनक्लेव मार्ग पे था, 4 किलोमीटर दूर, अबाउट 4 किलोमीटर अवे। थ्रो आउट द हैवी ट्रैफिक, कैसे लेके गए? जबकि हैवी ट्रैफिक था, काफ़ी भीड़ थी। इट वॉज अराउंड 11 PM व्हेन पॉल फाइनली गॉट हेल्प, मेडिकल हेल्प, बट द डिले मे हैव प्रूव्ड कॉस्टली। ये करीब 11 बजे उसको मेडिकल हेल्प मिली, लेकिन तब तक जो डिले थी, जो देरी थी, उसने प्रूव्ड कॉस्टली, वो कॉस्टली प्रूव हुई, यानी कि उसके लिए फ़ायदा नहीं हो पाया और नुकसान हुआ, यानी कि वो एक्सपायर कर गया। पुलिस सेड ए PCR कॉल अबाउट द एक्सीडेंट वाज रिसीव्ड एट 10-11 PM। पुलिस ने कहा कि एक PCR कॉल आई थी एक्सीडेंट की, दुर्घटना की, 10:11 पे उसको रिसीव हुई थी। द कॉलर सेड, द कॉलर मतलब जिसने कॉल किया था, 2 people वर इंजर्ड, उसने कहा 2 लोग जख्मी हो गए हैं, 2 people वर इंजर्ड। अब ये जो सेंटेंस होती है ना, कितने लोग जख्मी हो गए, या ये एक्टिव पैसिव सेंटेंस होते हैं, ये पैसिव है। तो एक्टिव पैसिव भी, ये सब चीज़ें, अभी ग्रामर आप थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, आप इसको सिर्फ मीनिंग को समझिए, ग्रामर भी हम साथ साथ करेंगे। अवर मैन रीच्ड द स्पॉट बाई 10:30 PM, हमारे लोग स्पॉट पर, मतलब जो स्थल है, जो दुर्घटना जहाँ पे हुई थी, वहाँ 10:30 बजे पहुँचे। बट बोथ पर्सन्स वर फाउंड टू हैव बीन शिफ्टेड टू डिफरेंट हॉस्पिटल, लेकिन दोनों लोग पाए गए कि वो दोनों अलग अलग अस्पतालों में वो लोग चले गए हैं। ये सेठ चौहान, ये चंदन चौहान जो DCP साउथ हैं, उन्होंने ये कहा। अब ये जो आप देखेंगे इसमें ये डबल कोट्स में लगा हुआ है ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है, मतलब वो क्या कह रहा है ये वहाँ पे बताया हुआ है। तो ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीज़ें
ग्रामर के हैं जो हम सीखेंगे जैसे जैसे आप कोर्स आगे बढ़ेगा। आगे और कि वो क्या कहते हैं, नो आई विटनेस। आई विटनेस होता है जो प्रत्यक्षदर्शी होता है, जो देखने वाला। वर फाउंड, नो आई विटनेसेस, ये प्लूरल है इसलिए वर आया है। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिले एट द स्पॉट पे। वन ऑफ द इंजर्ड हैड बीन शिफ्टेड टू द PSRI हॉस्पिटल। वन ऑफ द इंजर्ड मतलब जो जख्मी थे उनमें से एक कहाँ शिफ्ट हुआ था, PSRI हॉस्पिटल में, और अनदर दूसरा कहाँ शिफ्ट हुआ था, एम्स ट्रॉमा सेंटर में। तो जब भी आप ट्रांसलेशन करिए ना, वर्ड वाइज वर्ड छोटे छोटे सेंटेंस करके करें तो बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए करना, और आपके लिए इंग्लिश सीखना भी बड़ा आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। चौधरी सेड द CCTV फुटेज। चौधरी ने कहा कि जो CCTV फुटेज है वो बताती है, शोज पाल हिटिंग अनदर बाइक बीइंग ड्रिवन बाय ए मैन आइडेंटिफाइड एज बंटी। फुटेज ये शो कर रही है कि पाल ने किसी दूसरी बाइक को हिट किया जो चलाई जा रही थी, किसके द्वारा चलाई जा रही थी, बंटी के द्वारा, जो 26 लिखा है 26 साल का था। पाल्स फ्रेंड डिस्प्यूट दिस वर्जन। अब ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जो पाल्स के दोस्त हैं वो क्या है, इसको डिस्प्यूट बता रहे हैं कि ये दिस वर्जन, ये जो बताया गया है इसके विरोध में वो बात कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ था। पाल वर्कड एज ए फ्रीलांस फोटोग्राफर एट गुरुग्राम। पाल जो काम करता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पाल काम करता था एज ए फ्रीलांस फोटोग्राफर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये ग्रामर के टेंसेस, जिनको ग्रामर आती है, जिनको टेंसेस आती हैं वो इसको देखें कि कौन कौन से टेंस का है। जिसको ग्रामर के पूरे टेंसेस नहीं आते वो आप इसको इग्नोर करें। पाल वर्कड एज ए फ्रीलांस फोटोग्राफर एट गुरुग्राम। वो गुरुग्राम में एक फ्रीलांस होता है जो घर बैठ के, मतलब किसी जगह जॉब नहीं करता लेकिन अलग अलग कंपनीज़ के लिए काम करता है, वो फोटोग्राफर की तरह काम करता था। वाइल बंटी इज़ ए ड्राइवर, बंटी एक ड्राइवर है। बंटी इसमें बच गया। आल्सो बेस्ड इन गुरुग्राम, वो भी गुरुग्राम पे ही रहने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ बंटी स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ऑफ CCTV फुटेज, बंटी के स्टेटमेंट से, बंटी के बयान से और CCTV फुटेज को एनालाइज करने पे, उसको देखने से ए केस ऑफ एक्सीडेंट वाज रजिस्टर्ड, एक दुर्घटना का केस रजिस्टर्ड हो गया का मंडे को, सोमवार को। ऑन ट्यूसडे इवनिंग वी रिसीव द न्यूज़ ऑफ पाल्स डेथ, एडिट चौधरी। जो अगले दिन मंगलवार को पाल की डेथ हो गई, ये एडिट चौधरी मतलब चौधरी ने आगे बताया। वट हैज़ लेफ्ट पाल्स फ्रेंड्स लाइक स्वर्णेंदु बोस। पाल के कुछ फ्रेंड थे, उसमें एक था स्वर्णेंदु बोस। उसने कहा कि अगास्ट इज द केयरलेसनेस ऑफ पीपल इन द सिटी। अब ये एक फ्रेज़ है, मतलब अगास्ट का मतलब होता है भुचक्का रहना, और केयरलेसनेस का मतलब होता है संवेदनहीनता। अब इसका पूरा मीनिंग बनेगा, अगास्ट इज दिस केयरलेसनेस ऑफ पीपल इन द सिटी, कि शहर में लोगों की संवेदनहीनता दुखद है। मतलब जिस प्रकार से लोग संवेदनहीन हो गए हैं वो दुखद है। द वर्स्ट पार्ट मतलब जो बुरा हिस्सा है, इज़ दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, नो वन स्टेप्ड फॉरवर्ड, कोई आगे नहीं आया, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल ले जाने के लिए और उसकी मदद करने के लिए। तो वेरी शॉकिंग न्यूज़। द पीपल हु फाइनली टुक हिम टू द हॉस्पिटल, जो लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, टोल्ड अस, उन्होंने बताया, दैट बाईस्टैंडर्स वर रिकॉर्डिंग। अब द पीपल हु फाइनली टुक हिम टू द हॉस्पिटल, अब ये सारा जो है ना, अगर आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बताए हुए हैं तो ये सारा ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा हुआ है, टोल्ड। द पीपल हु फाइनली टुक हिम टू द हॉस्पिटल टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट बाईस्टैंडर्स, जो तमाशबीन थे, वो रिकॉर्डिंग वीडियोस, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। देखिए, कोई किसी की डेथ हो रही है वो लोग सेल्फी ले रहे हैं, बट नो वन वाज हेल्पिंग हिम, कोई इसको मदद नहीं कर रहा था, ये बोस ने कहा। हिज मोबाइल एंड लैपटॉप वर टेकन अवे,
तो देखिए कितनी दुखद बात है ये. व्हाट ए ट्रेजिक इंसिडेंट दिस वन. हिज मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप वर टेकन अवे. उसका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को भी ले लिया गया, यानी कि चोर वहाँ से लूट के ले गए. हिज पेरेंट्स वर ट्राइंग टू रीच हिम ऑन हिज फ़ोन. उसके पेरेंट्स उसको कोशिश कर रहे थे कि उसको फ़ोन पे उससे मिला रहे थे और फ़ोन बज रहा था. बट द पर्सन हु टुक इट, जो लेकिन जिस व्यक्ति ने फ़ोन चुराया था, वो टुक इट केप्ट कटिंग द कॉल. वो फ़ोन को काट रहा था. एंड लेटर स्विच्ड ऑफ द फ़ोन. और उसने बाद में फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर दिया. हैड समवन टेकन दोज कॉल्स. अगर किसी ने उन कॉल्स को उठाया होता, उनसे बात की होती, एंड टोल्ड द फैमिली, और फैमिली को बताया होता, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट सेड बोथ. तो हो सकता है चीज़ें कुछ और होती, हो सकता है उसकी जान भी बच जाती, फैमिली समय पे पहुंच जाती और एक व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकती. Paul was just a few kilometers away from his home in Kalkaji when tragedy struck. पाल अपने घर कालकाजी से कुछ ही किलोमीटर दूर था जब ये ट्रेजेडी होती है, ये जो हादसा है ये हुआ. His family runs a shop that sells पूजा आइटम्स in चितरंजन पार्क. उसकी जो परिवार है वो एक दुकान चलाते हैं जो पूजा की सामग्री चितरंजन पार्क में बेचते हैं. गुड स्मृतन जैन लेमेंटेड दैट. अच्छा ये हुआ कि स्मृतन जैन ने, लेमेंटेड का मतलब होता है खेद व्यक्त किया, उसने खेद व्यक्त किया कि दैट पीपल डोंट स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प, कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आते. एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन. दुर्घटनाएं किसी से के साथ भी हो सकती हैं, एनी टाइम, कभी भी हो सकती हैं. आई एम ग्रेटफुल टू द ऑटो ड्राइवर. मैं आभार व्यक्त करता हूँ उस ऑटो ड्राइवर का, हु ड्रोव एज फास्ट एज ही कुड, जिसने इतनी तेज़ी से ऑटो को चलाया जितना वो चला सकता था. जतिन जैन टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया TOI, रिग्रेटिंग दैट पाल कुड नॉट बी सेव्ड. लेकिन खेद भी व्यक्त किया साथ में कि पाल को बचाया नहीं जा सका. बोथ सेड पाल हैड बॉट ए न्यू हीरो X पल्स बाइक. पाल ने, बोस ने बताया कि पाल ने एक नई हीरो X बाइक, पल्स बाइक खरीदी थी. एंड वॉज प्रोबेबली रिटर्निंग फ्रॉम ए, और शायद वो वापस आ रहा था. कहाँ से? फ्रॉम ए फिटनेस सेंटर, एक फिटनेस सेंटर से. कहाँ पे? इन आरकेपुरम से. व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, जब एक्सीडेंट, ये दुर्घटना हुई. द हेड ऑफ न्यूरो इंटरवेंशन एंड सीनियर कंसल्टेंट, जो न्यूरो इंटरवेंशन और सीनियर, न्यूरो जो दिमाग की सर्जरी का वगैरह करते हैं, जो नसों की करते हैं, उनका जो हेड था, जो मुखिया था, और जो सीनियर कंसल्टेंट था, जो सलाहकार था, डॉक्टर न्यूरो सर्जरी का, उस एट कौन से हॉस्पिटल में? PSRI. डॉक्टर सुमित गोयल, उसने क्या कहा? द पेशेंट वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल एट अराउंड 11 PM. पेशेंट को 11 बजे हॉस्पिटल में लाया गया. ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट. तो ये वर्ब्स की फॉर्म भी करेंगे, ब्रिंग, ब्रॉट, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें करेंगे. अभी ये हम लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स कर रहे हैं. ही वॉज इन ए वेरी क्रिटिकल कंडीशन विद सिवियर हेड एंड फेशियल इंजरीज. वो बहुत ही क्रिटिकल, मतलब बहुत ही क्रिटिकल का मतलब दर्द, काफ़ी गंभीर अवस्था में था और बहुत ज़्यादा उसके हेड और फेशियल पे, हाथ, सिर पे और चेहरे पे जख्म थे. ही वॉज इमीडिएटली पुट ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट. उसको तुरंत वेंटिलेटर की सपोर्ट पे रखा गया. एंड मेडिसिन वर स्टार्टेड, और दवाइयाँ शुरू की गई टू स्टेबलाइज हिज फॉलिंग ब्लड प्रेशर, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा था. उसको स्टेबलाइज मतलब स्थिर करने के लिए. हाउएवर विद सच सीवियर इंजरीज, हालांकि इतनी ज़्यादा इंजरीज के साथ, इतने जख्मों के साथ, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, जितने भी एफर्ट्स किए गए, कोशिशें की गई, ही पास्ड अवे, वो चला गया, यानी कि वो दुनिया से चला गया. पाल वॉज प्रोनाउंस्ड डेड
around 5:13 PM on Tuesday. मंगलवार को पाल को मृत घोषित कर दिया गया शाम को 5:13 में. An autopsy was conducted and his body handed over to his relatives on Wednesday for last rite. ऑटोप्सी होती है जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम उसका हुआ, कंडक्ट किया मतलब हुआ, एंड इस बॉडी और उसकी जो शव है उसको हैंडेड ओवर कर दिया गया, दे दिया गया उसके रिश्तेदारों को बुधवार को अंतिम क्रिया के लिए, मतलब अंतिम संस्कार के लिए. द क्रेमेशन टुक प्लेस लेट इवनिंग एट निगमबोध घाट. देर शाम को निगमबोध घाट पे उसका संस्कार हुआ. तो दिस was all about the news. तो आपने it was a very shocking news. तो you can comment on this, but preferably you comment in English so that you can also learn how to do write comments in English. But you can also comment in Hindi, no problem. तो आज क्लास के लिए इतना ही. We will learn more things in the next class. Keep watching our previous videos and please also subscribe our YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. और व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको पूरी अपडेट मिलती रहेंगी. So that's all for today. Bye.